سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز سامعین، ثانی غنیۃ العلوم پتنازی کے عزیز طلباء، پردہ نشین خواتین، انتظامیہ نے مجھے صدارت کی کرسی پر بٹھایا تھا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اسٹیج سیکرٹری، اور ہمارے مدرسے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اناؤنسر یا منتظر. وہ اعلان کرتا ہے اس کارواں کو چلانے کے لیے ایک سرپرست اور صدر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ کارواں آگے بڑھے. صحیح معنوں میں، حقیقت میں ضرور ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس ذمہ داری کے لیے وہ بندہ چاہیے جس کے اندر یہ سارے اوصاف موجود ہوں. کیا ہو؟ اس کرسی پر یا اس گدی پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ صدر محترم یہاں بیٹھے بیٹھے اس پورے جلسے پر نظر رکھے، بولنے والے پر بھی، سننے والوں پر بھی، ادھر ادھر گھومنے والوں پر بھی. پھر جو کچھ کمی کوتاہی اس کو نظر آ جائے اس کی وہ اصلاح کرے، چاہے وہ اپنے بیان میں کرے اور چاہے وہ انفرادی طور پر کرے. میں صدر کی ڈیفینیشن اور تعریف یہی سمجھتا ہوں، باقی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوگی. میں تو اس قابل نہیں کہ میں آپ کی کمی اور کوتاہی دیکھوں اور یا اس مجمع میں بیٹھ کر اپنے ہم عمر یا عمر سے زیادہ علماء کرام کی نگرانی میں کوئی اصلاح کروں. مگر نچوڑ کے طور پر جو کمی اور کوتاہی مجھے اجمالی طور پر نظر آ رہی ہیں، بس میں ان باتوں کی طرف توجہ دلا کر بات ختم. بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے قرآن اور حدیث، اللہ کی وحدانیت کی باتیں سنی ہیں. پہلی بات، اجمالی طور پر جو ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، ہم لوگ جب جلسے میں آتے ہیں تو آنے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مقصد کچھ نہیں، جلسے میں جانا ہے. کیا ہے؟ فلاں مقرر صاحب، فلاں خطیب صاحب زبردست بیان کرتے ہیں، آئے تو جلسے کی زینت بنا دیں گے، بس ان کی چھلے دار تقریر سن کر واپس آ جائیں گے، بات ختم ہو گئی. شام کو انشاءاللہ آپ لوگ واپس جاؤ گے، بہت سارے تبصرہ کرو گے، انہوں نے ایسی تقریر کی، انہوں نے ایسا بیان کیا. پھر کوئی اس سے پوچھے کہا کیا تھا، تو روزم نے یاد بولون کیا، مگر بیان کروں زبردست. عمومی طور پر ہمارے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ ہم مقرر نے کہا کیا وہ ہم سن تو لیا لیکن دل میں اتارا نہیں. لہذا ابھی تک جتنی باتیں یاد رہی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور دوسری نشست میں جو باتیں سنیں گے ان کو بھی زندگی میں لائیں گے. مولانا عمر صاحب پالن پوری
नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, उम्मत बदनियती की नहीं बेनियती की शिकार है। नियति कोई नहीं करते हैं कि मैं क्यों आया हूं। एक कमी तो ये सब में होती है, सिर्फ आपकी नहीं, ये हमारी कमी भी होती है। दूसरे ये कि जब हम जलसगाह में आ जाते हैं तो चैन से नहीं बैठते, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, मोबाइल खोलेंगे, उसके साथ गप्पे मारेंगे। इधर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही होती है और हम एक दूसरे के साथ खुजर पुजर कर रहे होते हैं। ये अल्लाह रसूल की अमली तौहीन होती है। वैसे अलायाजुबिल्लाह अल्लाह रसूल को कोई गाली दे, बेनमाजी से बेनमाजी पत्थर उठाकर उसका सर फोड़ेगा। लेकिन अल्लाह रसूल की बात हो रही हो और हम अपनी बातें कर रहे हो तो ये तो अमली तौहीन होती है। लिहाजा इससे बात आ जाएगी। और जो बातें मैंने अभी तक सुनी उनका निचोड़ 4 बातों में निकाला है। उम्मीद है कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक देंगे, आपको भी देंगे। अभी मेरे पेशरो खतीब मेरे रफीक मोहतरम मुफ्ती आसिफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अल्लाह की कुदरत को कुरान की रोशनी में बयान किया। हमारे रहबर और रहनुमा सुबह जम्मू के खास तौर पर और जो वादी कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर के अमूमी तौर पर हज़रत मुफ्ती फैजुल वही साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे कि अल्लाह का कुरान अगर पत्थरों पर भी पढ़ोगे पत्थर भी पिघल जाएगा। तो माशाअल्लाह वो तासुर हमें मिल रहा था, हम अल्लाह का कुरान सुन रहे थे और सुकून तारी था। मगर उसका निचोड़ अगर मैं सादे लफ्जों में आपके सामने कहूं, मुफ्ती साहब ने भी आखिर पर इशारा किया, वो ये कि अल्लाह की तौहीद रिसालत हमारे दिल के अंदर आ जाए, यानी हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाए। पुराने जमाने के अंदर जब लोग दीनदार लोग जम्मू का सफर करते थे, वो बताया करते थे दबन नाज नमाजन हिशन हिफाजत रोजन के ये पहन जम गजन सारे नमाज कजा गसन। आमाल की हिफाजत नहीं होती थी, आमाल महफूज नहीं रहते थे। लेकिन अब हम उस दौर में आ गए हैं, आमाल तो पहले ही खत्म हो गए थे, अब बारी आ गई है अकीदे की। अब हमारे अकीदे महफूज नहीं है, हमारा ईमान महफूज नहीं है। अकीदा कहां से बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है? हम ये कहते हैं कोई आदमी मूर्ति के सामने सजदा करेगा उसका अकीदा खत्म हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा अकीदा खत्म हो गया, फिर माथे पर टीका लगा दिया अकीदा खत्म हो गया। लेकिन अकीदा मेरे और आपके दरमियान से गैर महसूस तरीके से निकलता जा रहा है, इसका एहसास नहीं, बूढ़ों से नहीं। खास तौर पर इस बात पर मैं जवानों से मुखातब हूँ, चूंकि हमारे जवान खालिस बौंजवा के अंदर नहीं रहते हैं, हमारे जवान बौंजवा से बाहर जाते हैं और बौंजवा में रहकर भी 24 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल होता है। इस मोबाइल के अंदर जहाँ बेशुमार फायदे हैं, वहीं पर बेशुमार खुराफात भी है। और खुराफात सिर्फ आमाल में नहीं है बल्कि अकीदे में है। किस तरीके पर बाज़ उलमा आपको सामने मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, ये खतीब ये मौलाना जबरदस्त तकरीर करता है, अंदर से वो अकीदे को खोखला कर रहा होता है। बेशुमार ऐसे, जाहिर में उनकी शक्ल बहुत अच्छी है, सर पर पगड़ भी है, हाथ में तस्बीह भी है, बाज तो तस्बीह छोड़ते भी नहीं है, और रुमाल भी है, लंबा सा जुब्बा और कुब्बा भी है, लेकिन अंदर से अकीदे को खोखला कर देता है। इसकी मिसाल में अर्ज करूंगा, कैसे होता है बंदे को पता भी नहीं चलता है। मैं जानता हूं और आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक साथी रहते हैं, बेशुमार लोग जानते होंगे लेकिन जवान नहीं जानते होंगे। उनका एक बेटा, बाप कैसा है, बाप को मैं बहुत करीब से जानता हूं। जब भी वो जम्मू आते हैं तो तकबीर उला नहीं बल्कि वो अजान से पहले मस्जिद में होते हैं। अजान से पहले जो बंदा आएगा तो क्या उसकी तकबीर उला कभी फौत होगी, क्या उसकी नमाज कभी कज़ा होगी? लेकिन मैंने सुना कि किश्तवाड़ और डोडा के अंदर कुछ हमारे जवान बिगड़ रहे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं। कुछ साथियों को ड्यूटी लगाई, देखो जरा निगरानी करो। एक साथी ने फोन किया, एक जवान की प्रोफाइल ये है और उस पर लिखा है प्रेजेंट अथीस्ट और पास्ट मुस्लिम, एक्स मुस्लिम और प्रेजेंट अथीस्ट। आपको पता नहीं चलेगा अथीस्ट किसको कहेंगे।
अतीस्ट उसको कहते हैं जो ये कहता है ये दुनिया बंदरों से बनी है, ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, क्योंकि साइंस यही कहती है कि दुनिया खुद ब खुद बनी है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है। और ये एक लड़का नहीं है, बेशुमार जवान ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल चेक कर लो, उनकी प्रोफाइल पर लिखा होगा अथीस्ट और एक्स मुस्लिम। पहला वो मुसलमान था, बाद में वो अथीस्ट बन गया। वो अल्लाह का भी इनकार करता है, वो कुरान का भी इनकार करता है, वो नबी का भी इनकार कर देता है, सारी शरीयत का इनकार करता है। और कल कयामत के दिन जो जन्नत और दोज़ख के इब्तिदान फैसला होंगे वो होंगे अकीदे की बुनियाद पर। लिहाजा हमारा बुनियादी अकीदा अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई न बनाने वाला है न बिगाड़ने वाला है। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी नबी है। ये दुनिया शुकूक और शुबहात में डालने वाली है, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह से काटती है, नबी से काटती है। नबी की जात के अंदर तरह तरह के बहतान और तरह तरह के इल्जाम और तरह तरह के शुकूक और शुबहात पैदा कर लेते हैं। लिहाजा पहली गुजारिश जवानों से भी और बुजुर्गों से भी, और खास तौर पर हमारे वो जवान जो बाहर चले जाते पढ़ने के लिए, अपने अकीदे की हिफाजत करें। और अकीदे की हिफाजत होगी जब तक न हमारा रिश्ता उलमा के साथ जुड़ा होगा। हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है मादरे इल्मी दारुल देवबंद के साथ, मादरे इल्मी दारुल देवबंद के उलमा के साथ। हम जिन उलमा की को अपना कायद और रहबर मानते हैं वो मादरे इल्मी दारुल देवबंद से जुड़े हुए। हम हर मसले को उलमा के साथ पूछ कर करेंगे। बुनियादी तौर पर हम अपने अकीदे को मुतजलजल न करें, अपने अकीदे को मजबूत करें। दूसरा, ईमान के बाद सबसे पहली चीज जो मुझ पर आप पर फर्ज होती है वो होती है नमाज। मैं आपको नमाज पढ़ने की दावत नहीं दूंगा, इसलिए कि नमाज पढ़ने की दावत मुसलमान को नहीं देनी है। मुसलमान पर तो नमाज फर्ज है, इस हाल में भी कि जब मैदान कारजार बरपा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मैदान जिहाद में लड़ रहे थे, उस हाल में भी ये कहा कि चंद सहाबा जाएंगे, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक रकात पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, दूसरे जाएंगे, दूसरी रकात पढ़ेंगे और फिर आएंगे, और पहले वाले जाएंगे, तीसरी रकात पढ़ेंगे, फिर ये जाएंगे, चौथी रकात पढ़ेंगे। ये तो हाल है मैदान कारजार में। एक औरत दर्द ज़हन में हो और बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका हो, बल्कि बच्चे का बाज हिस्सा दुनिया में आ चुका हो, और ये औरत अभी तक पाकी की हालत में हो, इधर मुअज्जिन कहेगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मुफ्ती से पूछो, मौलवी से पूछो, शरीयत से पूछो, शरीयत ये कहेगी इस औरत पर इस वक्त की नमाज फर्ज हो गई। जब इस औरत पर इस हाल में भी नमाज फर्ज है तो क्या कोई मुसलमान जमात नमाज छोड़ेगा? ये तस्वुर में भी नहीं हो सकता कि मुसलमान नमाज छोड़ेगा। मगर इसके बावजूद हमारी नमाजों का हाल क्या होता है, हमारी मस्जिदों का क्या हाल होता है। लिहाजा मैं आपको नमाज की दावत नहीं दे रहा, मैं आपको नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ने की दावत दे रहा हूँ। तो जो बंदा नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ेगा क्या उसकी नमाज छूटेगी? जबरदस्त, क्या पता उस तकबीर ऊला क्या हो। ऐसे नहीं उमरजा पढ़े। फजाइल अमाल के अंदर आपने 12 सुना होगा। कौन है वो भोंजवा का जवान या भोंजवा का बूढ़ा या भोंजवा का अढ़ेर उम्र वाला, हत्ता की भोंजवा की कौन सी वो औरत है जिसको फजाइल अमाल याद नहीं है। उस फजाइल अमाल के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 12 सुना है। जो 40 दिन तकबीर ऊला के साथ फर्ज नमाज पढ़ेगा उसको 2 परवाने मिलेंगे। क्या शाहस्ता कोशिश करूँ कि मैं 40 दिन ये नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ूंगा? हाँ, तब जब मैं जमात में गया होऊंगा तब तो मजबूरन अमीर साहब के डर से 40 दिन की कदर करता हूँ, लेकिन वापस आ गया। 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, ये 4 दिन भी बंदा तकबीर ऊला के साथ नमाज नहीं पढ़ता है। चौथे दिन ये बंदा गायब होता है। और फजर की नमाज में देखो, एक साथी कारगुजारी सुनाने लगे कि हमारी मस्जिद में कितने नमाजी है। मैंने कहा मैं बताऊंगा, 1% नमाजी है।
ہم تو بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن کیا ہماری مسجدوں کے اندر واقعی اتنے فیصد نمازی ہیں؟ میں نے کہا عید کا دن ہو، عید کے دن تو بے نمازی بھی جاگ جاتے ہیں، اور عید کا دن ہو اور محلے کا ایک بندہ فجر کی نماز میں شریک ہوتا ہو، معلوم ہی ہو گیا اس محلے کے صرف 1% نمازی ہے، ٹھاٹ سے سوتے رہتے ہیں۔ لہذا نماز 5 وقت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا وعدہ کر لو، کریں گے؟ ساری تکبیر تبلیغ والے انشاءاللہ وعدہ کرو انشاءاللہ تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور تیسری بات، مفتی خالد صاحب حفیظہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن سے متعلق آپ سے گفتگو کی، میں تو صرف ایک بات عرض کروں گا کہ صبح اٹھ کر جیسے ناشتہ کرنا اپنے لیے فرض سمجھتے ہو، صبح اٹھ کر جیسے نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہو، حالانکہ یہ فرض ہے نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس طریقے سے فرض ہے نہیں، لیکن اپنی زندگی میں لانے کے لیے بندہ ہر کام فرض کر سکتا ہے تو کر لیتا ہے۔ لہذا صبح اٹھ کر یہ طے کر لو، جب تک صبح کو اٹھ کر فرض نماز ادا کرنے کے بعد 1 پارہ اللہ کا قرآن کی تلاوت نہ کروں گا، تب تک اپنے اوپر ناشتے کو حرام سمجھوں گا۔ کریں گے؟ ابھی تو رمضان گزرا، سینکڑوں لوگ، اگر میں یہاں کارگزاری پوچھوں گا انشاءاللہ آدھا مجموعہ وہ نکلے گا جس نے رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولا ہوگا۔ یہ تجربے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اٹکل نہیں، تکے نہیں، گپ چھنے وانی۔ تجربات کی روشنی میں مسلمان جب قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ یعنی ایک بیٹا، ایک جوان جائے گا دلی پڑھنے کے لیے، وہ جائے گا امریکہ پڑھنے کے لیے، اور بیٹے نے خط بھیجا، بیٹا موبائل کے ساتھ وقت کم گزارنا، بیٹا سیاسی باتیں کم کرنا، بیٹا افراتفری نہیں کرنا، بیٹا آوارہ دوست نہیں بتانا، خط بھیج دیا۔ جب 2 سال کے بعد واپس آ گیا، لمبا سا موبائل، 10 دوست، وہ سارے، باپ نے دیکھا بالکل اپوزٹ، بیٹا میں نے تم کو خط بھیجا تھا، اس کا کیا کیا؟ ابا حضور آپ کا خط آیا تھا، مجھے فرصت نہیں ملی تھی، میں نے اس کو چوما تھا، آنکھوں سے لگایا تھا، پھر میں نے اس کو بکسے میں رکھ دیا تھا، الحمدللہ وہ محفوظ ہے۔ بتاؤ یہ باپ اس کو انڈے کھلائے گا یا ڈنڈے کھلائے گا؟ یہ خط اس کو پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے دیا تھا یا کہ صندوق میں رکھنے کے لیے دیا تھا؟ یہ اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے گائیڈ لائن دی تھی، رہبر دیا تھا کہ اس قرآن کے اندر یہ باتیں کرنے کی، یہ نہ کرنے کی، لیکن مسلمان صبح کو اٹھ کر اس کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر طاق پر رکھتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، مولوی مفتی خطیب کی بات چھوڑ دینا، اپنی مسجدوں میں آج جا کر دیکھنا، آپ کی مسجدوں کے اندر انشاءاللہ بے شمار قرآن کے نسخے وہ نکلیں گے جن پر گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا، اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ گھر میں پڑھتے ہیں، نہ مسجد کے اندر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنا پڑھیں گے؟ 1 پارہ پڑھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے ایسے جو روزانہ قرآن کی 1 منزل پڑھتے ہیں۔ قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ ہاں یہ تو بچے بتا رہے جو قرآن پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں نا۔ قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں، روزانہ 1 بندہ 1 منزل پڑھتا ہے۔ اور ابھی ہمارے رفیق محترم مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں فرماتے تھے، حضرت کا روزانہ کا معمول 10 پارے پڑھنے کا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے دنیا کے اندر ہیں، اس لیے ہم چل رہے ہیں۔ لہذا ہم نیت کر لیں 1 پارہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے نہیں انشاءاللہ، مفتی صاحب کی میں اگر ڈیوٹی لگا دوں گا اور روزانہ آپ سے کارگزاری لیا کریں گے، ہر علاقے کے اندر نہیں پڑھیں گے۔ چلو 1 پارہ نہیں، آدھا تو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ۔ اگر آدھا بھی نہیں پڑھ پائے پاؤ تو پڑھو گے نا۔ ایک رکوع پڑھنا فرض سمجھ لو اپنے اوپر کہ تب تک ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے جب تک نہ کم سے کم قرآن کریم کا 1 رکوع پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ بچے نہیں بتائیں گے، بڑے بتائیں گے۔ قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ ہاں
अब अभी अगर पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर से क्रिकेट टीम के लिए कौन बंदा सिलेक्ट हो गया है, अभी फर बताएंगे, और बॉलिंग की रनिंग कितनी है उसकी वो बता देंगे, औसतन बाल कितना तेज फेंकता है ये भी बताएंगे। लेकिन अल्लाह के कुरान के अंदर रुकू कितने हैं, मजमे में से मुझे नहीं लगता 5% लोग भी बता पाएंगे। तो रोजाना अगर एक रुकू पढ़ोगे तो 541 दिन के अंदर आपका कुरान मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, 360 या 65, और 541 रुकू साल में पूरा हो जाएगा। कुरान में 541 रुकू साल में पूरा हो जाएगा क्यों? रुकू करेंगे 2 साल लग जाएंगे। लिहाजा ज्यादा पढ़ो, कम से कम। सय्यदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान के हुकूक में से हक ये है कि बंदा साल में कम से कम एक बार पूरे कुरान का दौर निकाल दे, पढ़ ले। गैर हाफिज के लिए अलग हुक्म है। लिहाजा रोजाना कम से कम आधा पारा जरूर तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो बातिल के काम थे। आखिरी काम है वो जाहिर से मुतालिक है। हमें जैसे बातिन को बनाना होता है ऐसा ही जाहिर को बनाना भी जरूरी है। जिन लोगों के लिए टोपियां जरूरी नहीं थी उन्होंने अपनी पहचान के लिए टोपियां पहननी शुरू कर दी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में टोपी भी पहनी है, पगड़ी भी पहनी है। मुझे अपने गुज्जर भाइयों से बड़ी शिकायत है। हमारे गुज्जर भाई पूरी सुन्नत की जिंदगी गुजारते थे। पायजामा इनका टखनों से ऊपर होता था, हाथ में इनकी छोटी होती थी, दाढ़ी इनकी पूरी होती थी, सर पर पगड़ी होती थी। लेकिन आहिस्ता 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 ये भी मॉडर्न बनते जा रहे हैं। कम से कम आप तो अपनी कौम से ये बेवफाई न करो कि आपके पिछले जो आबा अजदाद थे उन्होंने अपनी जिंदगी अमल जैसे कैसे कमजोर रहे थे। लेकिन याद है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को जब अल्लाह पाक ने बर्बाद किया, एक को बचा दिया। हजरत मूसा ने अर्ज किया, बारी तला सबसे ज्यादा यही तो सताता था जो मेरी नकल उतारता था। अल्लाह ने क्या फरमाया? कलीमुल्लाह, जो मेरे हबीब की नकल उतारे और कलीम उसको और खालिक कायनात उसको सजा दे दे, ये उस खालिक की शान के खिलाफ होगा। ये शक्ल बनाना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग नमना एंजर किन का पाक आसन नेबिन को शूचन नेब्रिमन चालन तो डालन को शूचन एंद्रिम हाल गश ठीक आसन। हाल भी ठीक होना चाहिए, ये चाल डाल भी ठीक होनी चाहिए। सर पर हमेशा टोपी होनी चाहिए। हमारे जवान तो मस्जिद में दाखिल होते फिर कोनों में देखते, चटाई उठा कर देखते कहीं पे प्लास्टिक की टोपी तो नहीं रखी होगी। यही प्लास्टिक का जूता पैरों में पहनते हो और यही प्लास्टिक की टोपियां सर पर लाकर रख देते हो। ये प्लास्टिक की टोपियां मस्जिदों में रखना मैं ये समझता हूँ ये जायज ही नहीं है। अवलन तो कोई टोपी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर ये प्लास्टिक टोपियां ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारे उस्ताद ने ये फतवा दिया था कि तबा करो इन प्लास्टिक की टोपियों को, मस्जिद के अंदर हरगिज नहीं होनी चाहिए। मुसलमान हो और उसको सर छुपाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए टोपी ना हो। 24 घंटे सिर्फ सोने के लिए टोपी उतार दो। चंद दिन पहले मैंने गंजा किया था, फिर मैं बाथरूम चला गया, ख्याल ये आ गया कि भाई सर पर टोपी, सर पे बाल ही तो नहीं है, ऐसा टोपी की क्या जरूरत है। जब बाथरूम के अंदर आ गया, जब वुजू करने लगा तो मुझे ख्याल आ गया सर ढांपने का हुक्म है, बाल ढांपने का हुक्म नहीं है। सर तो यहीं पर मौजूद है, बाल उतरे तो उतरे, सर ढांपने का हुक्म है। जब बाथरूम में जाने के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर ढांप कर जाओ, तो क्या मस्जिद में यूं ही आवारा फिरू मिल जाओ, आवारा स्टेज की तरफ चले जाओ और सर पर कोई टोपी न हो, ऐसा कर निकल जाएंगे। इस सर को अपने टोपी और इमामे से सजाओ। कौन कौन नहीं सजाएगा, कौन कौन नहीं सजाएगा वो हाथ खड़े करो। इंशाअल्लाह सब सजाएंगे इंशाअल्लाह। इस सर को टोपी से भी और इमामे से भी सजाओ। सिख कौम का मजहब कोई नहीं है, लेकिन सिख कौम ने हुकूमतों को अपना डंडा मनवा लिया, अपना लोहा मनवा लिया। ट्रैफिक वाले रोकते हैं, मैंने कहा कहते हेलमेट कहाँ है, मैंने कहा ये पगड़ी है ना, कहते ये सिखों के लिए आपके लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों, उनका सर लोहे का होता है। ये इसीलिए तो कहा तुम्हें इस पगड़ी के ऊपर हेलमेट आ नहीं सकता है, या अगर गिरेगा सर फूट नहीं सकता, तो इंशाल्लाह मेरा सर भी नहीं फूटेगा और इस पर हेलमेट भी नहीं आता है। कहने का फिर वो ये कहेगा
उनका मजहब कोई नहीं, दीन कोई नहीं, वो नहीं वो मजहब जिसको फायदा कुछ नहीं मिलना। लेकिन कड़ाके की गर्मी हो, अमृतसर में जाओ, हर सिख के सर पर इमामा बंधा होगा। इमामा यानी उनकी पगड़ी। लेकिन हमें इस इमामे पर सवाब मिलना है। नमाज इमामे के साथ पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, यूं ही इमामे के साथ चलोगे सवाब इस पर जरूर मिलेगा। लेकिन हमने इसको उतार दिया। फिर यहाँ से नीचे उतरो, माशाअल्लाह, फिर जवान नाराज भी होते हैं, लेकिन चारा भी कोई नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी जवान तो जवान, बुढ़े लोग सुबह को उठकर कैंची पकड़कर सफाया कर देते हैं, और कबाज तो ब्लेड लेकर सफाया कर देते हैं। जानते हो क्या कर रहे हो? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कभी दाढ़ी नहीं कटवाई है। जब ईद के लिए निकलते हो, हम गुलाम हम गुलाम, अगला नारा तुम लगो क्या? हाँ, हम वो देखो, अब चूंकि पकड़ आने वाली में इसे बोलेंगे नहीं, हालांकि सबको याद है, हम गुलाम हम गुलाम हम। तो मोहम्मद के गुलाम ऐसे होते हैं। मोहम्मद के गुलाम सुबह उठकर सफाचट करते, ये दाढ़ी रखना वाजिब है। बहुत सारे ये इस तरीके से दाढ़ी नहीं, दाढ़ी तो वाजिब है। आम बातों के लिए भी ये कहना संथी हो, ये सुन्नत को हल्का समझ लेना। काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ऐसा कहने वाला बंदा ईमान से गया। ये राशन कार्ड में तो मुसलमान होगा, लेकिन किरामन कातिबीन की यहाँ ये गया हो गया। इसलिए कि इस्तिग़फ़ाफ़ सुन्नत ये कुफ्र है। लिहाजा अपनी दाढ़ियों को सजाओ। दौर वो आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता जिंदगी की शाम रास्ते में हो गई, आपकी पहचान कोई नहीं होगी। ये हिंदू है कि मुसलमान, ये ईमान वाला है गैर ईमान वाला है, ये तो वो चीज है जो वाजिबात है और वो दायमी सुन्नत है जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। एक आखिरी बात वो है जो हमारे जाहिर से मुतालिक है, वो है लिबास से मुतालिक। बहुत सारे लोग कहते हैं दबरनाक लिबास शरीयत ने मुतय्यन थोड़ी किया है। हम तेवड़ा में पढ़ते थे, वहां से मुजफ्फरनगर आ गए तो एक बंदा कहने लगा, मैं अभी नदवतुल उलमा से फारिग हूँ, पैंट शर्ट क्लीन शर्ट, इतनी थोड़ी सी दौड़ी दाढ़ी थी, और मुल्ला आबाशद की चुप ने शवा छोटा सा तालबी लंबी छक्के छोड़ा देता है। कहने अच्छा तुमको वहां पर यहूदी बनाया या मुसलमान बनाया है? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा काम ये है फतवे दे। कहना ये फतवा नहीं है, तुम्हारी शक्ल है, ये तो यहूदियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। क्या पैंट कोट सिखलाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? कहने लगे देखो, अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंदन में पैदा हुए होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैंट कोट पहनना था। वो तो अरब में पैदा हुए थे, इसलिए शलवार कमीज पहनते थे। अल-याज़ु बिल्लाह, ये तो कुरान का इनकार है। कुरान ये कहता है बोलना करना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। ये सारी तरबियत तो नबियों की अल्लाह करता है। अल्लाह जो बताते थे वो पहनते थे, अल्लाह जो बताते थे वो करते थे, अल्लाह जो बताते थे वो बोलते थे। हर काम तो अल्लाह ने बताया। ये लिबास भी अल्लाह ने बनाया है, ये लिबास भी अल्लाह ने बताया है। और मुहद्दिसीन ने किताबों के अंदर मुस्तकिल लिखा किताबुल लिबास, लिबास। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ता मुबारक को बयान किया है। आपका कुर्ता मुबारक कैसा होता था? सफर में होते थे तो कितना लंबा होता था, हजर में होते थे लंबा कैसा होता? ये जो ये कॉलर बनाते, जो बटन बनाते, क्या ये बटन बीच गिरेबान में होते थे या इधर साइड में भी होते थे? ये जो आस्तीन होती है ये ऐसी होती है या बटन की होती है? कॉलर कैसा होता है? बटन मुबारक कितने थे? ये सारी तफसीर मुहद्दिसीन ने किताबों के अंदर बयान कर दी है। और बंदा ये कहेगा कि भाई लिबास की कोई बात नहीं होती है। बाज लिबास तो हराम होते हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। लिबास अल्लाह ने इसलिए दिया है ताकि बदन की बाज वो आज़ा, बाज वो साख, बाज वो हिस्से जिनको बंदा उन जगहों पर भी जाहिर नहीं करना चाहिए, जिस जगह पर उसको जाहिर करने की इजाजत है वहां पर भी जाहिर नहीं करना। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 17 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। लेकिन इस दरमियान में न कभी आपने मेरे पर्दे की जगह को देखा, न कभी आपने मेरे पर्दे की जगह को देखा है।
और गुस्ल ऐसे फरमाते थे। अम्मी आयशा फरमाती है एक ही टब होता था, एक ही जो भी होता वो टब एक था या बाल्टी एक थी, जग भी एक था। मैं उसको पकड़ती थी, नबी अलैहिस्सलाम ये से पकड़ लेते थे, आप पकड़ते थे, मैं आपसे हाथ से छीन लेती। ये छीना जब भी हम गुस्ल के दौरान भी करते थे, लेकिन फिर भी न आपने कभी मेरे पर्दे की जगह देखा, न मैंने कभी आपके पर्दे की जगह देखा। जहां पर इजाजत होती है, लेकिन हमारी बेटियां और हमारे जवान आज कैसा लिबास पहनते, ऐसा बदतमीज लिबास होता है, ऐसा जिसको मुफ्तियाने कराम से अगर पूछोगे इंशाअल्लाह उस पर हुर्मत का फतवा देंगे, लेकिन देते नहीं है। लेकिन जाहिर में वो लिबास तो बिल्कुल हुर्मत के करीब होता है। बदन की साख्त जाहिर जिसमें हो जाए वो लिबास पहनना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जवानों ये नियत कर लो इंशाअल्लाह हम ऐसा लिबास पहनेंगे जो लिबास हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। पहली बात मैंने अर्ज कर दी, अपना अकीदा दुरुस्त करना है। दूसरी बात मैंने अर्ज कर दी, नमाज 5 वक्त तकबीर ऊला के साथ पढ़नी है। तीसरी बात मैंने ये अर्ज कर दी, सुबह उठकर इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करनी है। और चौथी बात मैंने ये अर्ज कर दी, अपने जाहिर को भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक बनाना है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं तहे दिल से तमाम हज़रात का मशकूर ममनू हूँ कि जिन्होंने अपनी मशगूलियात और बेइंतहा मसरूफियात के पेश नजर सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए, वक्त का लिहाज रखते हुए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।